Good morning, आदाब, सत श्री अकाल. Welcome to our धमाकेदार, फर्राटेदार and मज़ेदार session by Bhagwati Chaudhary. And today I am dealing with the chapter of class 12, that is sexual reproduction in flowering plants. As you know very well, in plants both the mode of reproduction is found, that is asexual and sexual mode of reproduction. Asexual reproduction takes place by root, stem and the leaves. In plants, sexual reproduction takes place by flower. You have seen the flower and the different holes. In this topic, we will study the structure of the flower, the formation of male gamete, formation of female gamete. Before starting all, we will study the structure of flower first. In flower of the angiosperm, they are well developed and the different holes. Male gamete and the female gametes are formed. Male gamete are formed inside androecium. Female gamete are formed inside the gynoecium. And the fusion of male and female gamete is male and female gamete. Yes, correct. Is the sexual reproduction. So we will study the structure of flower, reproductive structure, that is androecium and gynoecium. Androecium microsporogenesis in this video. In next video we will study the gynoecium, that is the female reproductive part, megasporogenesis, that is the female gamete, pollination, transfer of pollen grain to the stigma, and how the fertilization takes place and how they function. Before all, this is the structure of flower. You have seen the different types of the flower, colorful flower, beautiful flowers. Among them, one of this is a structure of flower. In flower, the outermost hole is the calyx and single one is known as sepal. Single one is known as sepal and group of sepal is known as calyx. The second hole is petal, which is the second hole of the flower. This is the second hole, and group of petal is corolla. The third hole is the androecium, which is made up of stamen. Each stamen is made up of two parts. Upper lobe-like is the anther and thread-like is filament. Both anther and filament, they form the stamen, and group of stamen is known as androecium, which is the third hole, and the innermost hole is known as gynoecium. Gynoecium, which is again made up of stigma, style and ovary. This is stigma, style and third one is ovary. All these together form the gynoecium, pistil and gynoecium. So outer hole sepal, group of sepal is calyx, inner is petal, second hole colorful part, group of petal is corolla, third hole is the stamen, group of stamen is androecium, and the innermost hole, that is the female reproductive part, is the pistil, group of pistil is gynoecium. Then we will study the definitions. Calyx, which is made up of sepal, outermost hole of the flower, generally it is green in color, but in some plants they are of violet, red, etc. In a bud condition, they protect the flower, and calyx is termed as calyx may be prominent or absent. The second hole is the corolla. Again, corolla, yes, it may be 4-5 petal. Corolla may be different in number and
single one is known as petal. It is generally colored, thin, soft part, and insects are attracted due to its colorful part. Even human beings are also attracted. And next important role, that is the androecium and male gamete. Male gamete is formed inside this male reproductive part. It is again made up of the androecium is made up of stamen, and each stamen is made up of anther and filament, which we have studied in the diagram. The tip is the anther and the thread-like structure is known as filament. In anther, yes, in this one portion, anther, by meiosis, male gamete is formed. The anther is of two lobes, that is like in this way, equally bilobed structure. In each lobe, two sacs are present, and each sac is known as pollen sac. This one. It means 4 pollen sacs are present, and inside each pollen sac, pollen grains are formed. Anther is 4 lobe. Yes, again 4 lobe. Filament is thread-like structure, and filament is attached to the thalamus portion. In the transverse section of the anther is the microsporangia, which further form the pollen sac. इनिशियल स्टेज पे हम कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया, जो नेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट होकर जैसे जैसे मेच्योर होते हैं वो पोलन सेक के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं. कैसे होंगे वो हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे. चलिए मैं यही बता देती हूँ कि ये हो गया आपका बाइलोब. अब इसके अंदर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं, वो एक मास के अंदर इकट्ठी हो जाती हैं और धीरे धीरे ये 2 में डिवाइड कर जाती हैं. और बाय माइटोसिस, not by meiosis, by mitosis they divided into 2. One is the primary parietal cell and second one is the sporogenous mother cell. Primary parietal cell, they form the wall layers, and SMC, sporogenous mother cell, divide and form the pollen grain. In the initial stage they are the pegged structure. In initial stage, like that, the 2 cell, the outer primary parietal cell, they form the layers, and these are the compact structure. They divide by SMC, sporogenous mother cell. They divide by meiosis, meiosis 1, and by meiosis 2, means 4 pollen grains are formed, which are arranged generally 3 in front and 1 in at the back side. During their development, some are degenerated. जब डीजनरेशन होगा तो इन सेक लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर, इसी सेल के अंदर जब ये पोलन ग्रेन्स फॉर्म्ड हुए हैं, कुछ पोलन ग्रेन्स का डीजनरेशन होगा जिसकी वजह से यहाँ पर गैप बनेगा जिसे हम कहते हैं सेक, और वो ही कहलाता है पोलन सेक. ठीक है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम के द्वारा पोलन सेक बनता है. आई थिंक आपको समझ में आ चुका है, और फिर भी नहीं है तो हम आगे इनको पढ़ते हैं. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेल गैमेट का फॉर्मेशन कहलाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कहलाता है मेगास्पोरोजेनेसिस, क्योंकि फीमेल गैमेट बड़ा होता है, बड़े के लिए मेगास्पोरोजेनेसिस. जेनेसिस मीन्स बनना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी मेल गैमेट बनना, मेगास्पोरोजेनेसिस मीन्स फीमेल गैमेट का बनना.
Microsporogenesis. The formation of microspore is known as microsporogenesis. और किससे बनेगा? MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल। कौन सा डिवीजन? मियोटिक डिवीजन के द्वारा होगा। अब ये होता कहाँ है? फिलामेंट तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो गया। पोलन ग्रेन कहाँ बनेंगे? एंथर के अंदर ही। एंथर के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ईच एंथर इज बाइलोब, यस क्लियर। और हर एक लोब के अंदर 2 पोलन चैम्बर हैं जिनके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम है, और हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर। हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर। तो हम माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर ही देख लेते हैं। यस, ये है आपका एंथर का टीएस ट्रांसफर सेक्शन, जिसके अंदर ये फर्स्ट वन में ये देखिए आपको 4 सेक लाइक स्ट्रक्चर पोलन सेक दिखाई दे रहे हैं। अब इनमें सबसे आउटर लेयर क्या हो गई? एपिडर्मिस, which is the outermost layer. Inner to the epidermis is, first one is epidermis. एपिडर्मिस के नीचे आपकी आ जाती है एंडोथीशियम, ये रही आपकी सेकेंड होल। एपिडर्मिस भी सिंगल लेयर की होती है, एंडोथीशियम भी सिंगल लेयर की। उसके जस्ट नीचे 2 to 3 लेयर की मिडल लेयर होती है, और सबसे इनर मोस्ट लेयर जो कहलाती है टेपिटम, जो मल्टी न्यूक्लिएटेड न्यूट्रिटिव लेयर होती है, स्पोरोपोलिनिन का सेक्रेशन करती है, जिसके कारण पोलन ग्रेन के हमें जो फॉसिल्स मिलते हैं। तो ये जो चारों हैं ये वॉल बनाती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेपिटम। They four form the layer, and inside this tapetum pollen grains are formed. ये देखिए आपको बहुत ही प्यारे प्यारे दिखाई दे रहे हैं। इन पोलन सेक्स के अंदर ये देखिए, जब इनके अंदर डिवीजन हुआ, जब पोलन ग्रेन की मात्रा बढ़ गई, तो इनका जो प्रेशर लगा, वॉल के ऊपर प्रेशर लगेगा, और इस सैक लाइक स्ट्रक्चर में कुछ खाली जगह भी बच रही है, क्योंकि कुछ पोलन ग्रेन डीजनरेट हुए, और जो डीजनरेट हुआ उनका न्यूट्रिशन जो है इन पोलन ग्रेन ने ले लिया, और जब ये वॉल ब्रस्ट होती है तब ये पोलन ग्रेन बाहर आउटर इन्वायरमेंट के अंदर आ जाते हैं। तो ये हमने एंथर के अंदर ही हमने देखी है वॉल, और कैसे बनती है देखिए। सबसे पहले आपकी एपिडर्मिस होती है, आउटर लेयर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर ही मास ऑफ सेल इकट्ठा हो जाता है, जिसे हम कहते हैं आर्कीस्पोरियम। इन आर्कीस्पोरियम के अंदर माइटोसिस होता है, नॉट मियोसिस। ये देखिए 2 सेल में डिवीजन हो रहा है, जिसके कारण 2 तरह की सेल बनती है। जो आर्कीस्पोरियम के अंदर डिवीजन होता है, जिससे 2 सेल बनती है। आउटर वन प्राइमर, आउटर प्राइमर पैराइटल, PPC प्राइमरी पैराइटल सेल जो वॉल लेयर बनाएंगी, और इनर स्पोरोजिनस मदर सेल, प्राइमरी स्पोरोजिनस मदर सेल बनती है। इसी तरह देखिए, जैसे एक में बनाए, एक तो यहाँ पे 1 2 3 4। तो ये 4 सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले आर्कीस्पोरियम बनेगा। आर्कीस्पोरियम में माइटोसिस होगा, जिसके कारण 2n से 2n ही बनेगा, इक्वल नंबर। माइटोसिस के कारण क्या होता है? 2n से 2n बनेगा, और जिसमें आपकी प्राइमरी पैराइटल सेल है वो लेयर बनाएगी कौन सी? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टेपिटम। और स्पोरोजिनस मदर सेल, जिससे आपके पोलन ग्रेन्स बनेंगे। अब वॉल के ये नोट्स मैंने दे रखे हैं, आप इनको जूम करके रिटर्न इनके नोट्स ले सकते हो। टेपिटम, इसी का ज़्यादा क्वेश्चन आता है, टेपिटम का ही।
बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन स्टार बना लीजिएगा, यहीं से ज़्यादा आते हैं। टेपिटम मल्टी न्यूक्लिएटेड है, इनर मोस्ट लेयर होती है वॉल की, न्यूट्रिटिव है, स्पोरोपोलिनिन का सेक्रेशन होता है वो टेपिटम के द्वारा। मिडल लेयर 3 to 4 लेयर की होती है, जस्ट बिलो द एंडोथीशियम। एंडोथीशियम एपिडर्मिस के जस्ट नीचे है और एपिडर्मिस तो आपके सबसे आउटर साइड के अंदर होती है, प्रोटेक्टिव सिंगल लेयर की होती है। डिस्चार्ज पोलन ग्रेन के डिस्चार्ज में मदद करती है। पोलन ग्रेन अब प्राइमरी स्पोरोजिनस मदर सेल जो आर्किस्पोरियल सेल ने डिवीज़न किया था, बाहर तो वॉल लेयर बन गई थी और ये स्पोरोजिनस मदर सेल जिनके अंदर मियोसिस होगा और क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन बनेंगे। और मियोसिस के कारण 4 पोलन ग्रेन, और ये जो पोलन ग्रेन जनरली है ये टेट्राड की कंडीशन में जो जनरल पोलन ग्रेन है 3 फ्रंट में दिखते हैं, एक बैक साइड में होता है। 4 द यंग एंथर सून बिकम 4 लोब होमोजीनियस पैरेन्काइमेटस सेल सराउंडिंग द एपिडर्मिस, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इनिशियली आर्किस्पोरियल प्रेजेंट हाइपोडर्मल सेल divide into 2 primary sporogenous mother cell which form the primary sporogenous mother cell form the pollen grain and the outer parietal cell which form the layers. Sporogenous mother cell by mother cell divide and form the pollen grains are formed. Microsporogenesis, अब ये आपने देखा कि ये जो 4 लोब का स्ट्रक्चर है जिसमें ये वॉल लेयर्स बन चुकी हैं और अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम, इनिशियल में हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम। और जब इनके अंदर खूब सारे पोलन ग्रेन बनेंगे, कुछ डीजनरेट हो जाएंगे तो खाली जगह भी बच जाएगी, तब ये क्या कहलाएगा, माइक्रोस्पोरेंजियम कन्वर्ट हो जाएगा पोलन सेक के अंदर। और पोलन सेक के अंदर क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोरेंजियम इनिशियल स्टेज के अंदर मेल गैमेटोफाइट यहाँ पर बनते हैं, वॉल लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन। अच्छा, जब हम एक पोलन ग्रेन की, ये जो पोलन ग्रेन मियोसिस के द्वारा जो डिवाइड किए हैं 4 लोब में, 3 फ्रंट में, किसी में ये लीनियर शेप में भी रहते हैं, ये चारों अटैच या टी शेप में भी रहेंगे, ये इस तरह के ऐसे। तो जनरल है वो इस टाइप का टेट्राड कंडीशन में रहते हैं, 3 फ्रंट में, एक बैक एंड साइड में। ये चारों जॉइंट फॉर्म में सेलुलोज के द्वारा ये जॉइंट रहते हैं और हम इस एक को कहते हैं ये पोलन ग्रेन। डिस्चार्ज के समय, पोलिनेशन के समय ये जो है सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम इनकी वॉल को डाइजेस्ट कर जाते हैं और ये पोलन ग्रेन या अलग अलग जो है डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो एक हुआ हमारा पोलन ग्रेन। वो पोलन ग्रेन किसका बना है, आउटर एक्साइन और इनर एंटाइन का। आउटर लेयर स्पोरोपोलिनिन की थी, याद कीजिए ये स्पोरोपोलिनिन कौन सेक्रीट करता है, टेपिटम सेक्रीट करता है। इनर लेयर पेक्टिन और सेलुलोज की बनी हुई है। ये देखिए आपका एक पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, इसमें बहुत प्यारा डायग्राम है। ये देखो, थिकनेस जो है यूनिफॉर्म थिकनेस नहीं है। आउटर लेयर क्या है, एक्साइन है। इनर लेयर क्या है, इंटाइन है, जो पेक्टिन और सेलुलोज की बनी हुई है। थिकनेस के अंदर आप देखिए ये जो पोर दिखाई दे रहा है, जर्म पोर, यहाँ से जो है पोलन ट्यूब निकलती है जो स्टिग्मा के ऊपर निकलते हुए उसकी स्टाइल से पेनिट्रेट करते हुए फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती है। जनरली पॉलिनेशन 2 सेल स्टेज में होता है। मैं 2 सेल स्टेज, ये देखिए, जर्मिनेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल, जर्मिनेटिव एंड वेजिटेटिव 2 सेल स्टेज में पॉलिनेशन होता है। प्री पॉलिनेशन,
पोलिनेशन मीन्स क्या होता है, पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पर गिरना। जो हमने 3 ओल पढ़े थे, आउटर ओल केलिक्स, उसके इनर कोरोला, फिर थर्ड ओल एंड्रोशियम जिसमें पोलन ग्रेन बने हैं आपके, और था जो फोर्थ ओल इनर मोस्ट है जो गाइनोशियम, और गाइनोशियम के हमने पार्ट पढ़े स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये वाला पोर्शन स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब हमारे एंथर के अंदर ये जो पोलन ग्रेन बन चुके हैं, ये पोलन ग्रेन का स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफ़र होना, ये कहलाता है पोलिनेशन। अब यहाँ पर पोलन ग्रेन जो एक्साइन वगैरह, इंटाइन और एक्साइन बने हुए तैयार हैं। पोलिनेशन से पहले इनके अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे? द माइक्रोस्पोर स्टार्ट जर्मिनेटिंग इन situ, इनमें पोलन जो है इन situ जर्मिनेशन शुरू हो जाता है। 2 सेल स्टेज में होता है पोलिनेशन, जर्मिनेटिव सेल lying to the spore wall, a cellulose layer around the germinative cell dissolve, क्योंकि ये जो 4 सेल स्टेज के अंदर हैं, इनकी सेलुलोज की ये जो लेयर है वो टूटेगी, सेलुलोज लेयर डिसॉल्व हो जाती है, जिसके कारण ये पोलन ग्रेन शेड ऑफ हो जाते हैं और इनकी वॉल है वो ब्रस्ट हो जाती है। पोलन ग्रेन आउटर इन्वायरमेंट में आ जाते हैं और स्टिग्मा के द्वारा जो पोलिनेशन है ये या तो विंड के द्वारा, एयर के द्वारा, इंसेक्ट्स के द्वारा, ह्यूमंस के द्वारा, बर्ड्स के द्वारा पोलिनेट होते हुए एंथर से स्टिग्मा पर चले जाते हैं। स्टिग्मा पर जाकर ये वाटर का अब्जॉर्प्शन करते हैं और ये पोलन ग्रेन, ये जो पोलन ग्रेन यहाँ पहुँचे हैं बाहर, एक्साइन इंटाइन, स्वेल विद द फ्यू मिनट्स एंड ट्यूब विल सेक्रेटेड। याद कीजिए मैंने बात की थी जर्मिनेटिव ट्यूब, वो ट्यूब निकलते हुए यहाँ आपका मेल गैमेट है, ये जर्मिनेटिव ट्यूब स्टाइल से पेनिट्रेट होती हुई फीमेल गैमेट तक पहुँचती है। द वॉल ऑफ द ट्यूब सेक्रेट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, कौन सा एंजाइम सेक्रेट किया जाता है? हाइड्रोलाइटिक एक्सोजीनियस, विच पास द एंट्री फ्रॉम द स्टिग्मा टू द स्टाइल। द 2 सेल हमने देखे थे पोलन ग्रेन के अंदर, जर्मिनेटिव एंड वेजिटेटिव सेल विच आर कैरी टू द पोलन ट्यूब। ये दोनों ही आपकी इसके अंदर, ये देखो ये इस तरह से दोनों ही आपके जर्मिनेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल इस ट्यूब के द्वारा पेनिट्रेट करते हैं। जर्मिनेटिव सेल अगेन डिवाइड टू फॉर्म 2 मेल गैमेट, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन डिवाइड करता है? जर्मिनेटिव सेल डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बनाती है, इसीलिए यहाँ पे होता है आपका डबल फर्टिलाइजेशन। ये देखिए यहाँ आपकी अगेन दिखा रखा है एंथर, फिलामेंट, पोलन की वॉल, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, टेपिटम, पोलन ग्रेन बने हैं। ये आपकी पोलन ग्रेन जो स्टिग्मा से पेनिट्रेट करती हुई। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे इनका मेल और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन होता है और मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस कैसा होगा, वो मैं आपको कल के वीडियो में आपको देती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू। समझ में आ गया? लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जल्दी आपसे मिलती हूँ। ओके, बाय बाय। लाइक कर दीजिए, शेयर। गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू आवर धमाकेदार, फर्राटेदार एंड मज़ेदार सेशन by Bhagwati Chaudhary, and today I am dealing with the chapter of class 12, that is sexual reproduction in flowering plants. As you know very well, in plants both the mode of reproduction is found, that is asexual and sexual mode of reproduction. Asexual reproduction takes place by root, stem and the leaves. In plant, sexual reproduction takes place by flower. You have seen the flower and the different holes. In this topic we will study the structure of the flower,
the formation of male gamete, formation of female gamete. Before starting all, we will study the structure of flower first. In flower of the angiosperm, they are well developed and the different holes. Male gamete and the female gametes are formed. Male gamete are formed inside androecium. Female gamete are formed inside the gynoecium. And the fusion of male and female gamete is yes, correct, is the sexual reproduction. So we will study the structure of flower, reproductive structure, that is androecium and gynoecium, androecium microsporogenesis in this video. In next video we will study the gynoecium, that is the female reproductive part, megasporogenesis, that is the female gamete, pollination, transfer of pollen grain to the stigma, and how the fertilization takes place and how they function. Before all, this is the structure of flower. You have seen the different types of the flower, colorful flower, beautiful flowers. Among them, one of this is a structure of flower. In flower, the outermost hole is the calyx and single one is known as sepal. Single one is known as sepal and group of sepal is known as calyx. The second hole is petal, which is the second hole of the flower. This is the second hole, and group of petal is corolla. The third hole is the androecium, which is made up of stamen. Each stamen is made up of two parts. Upper lobe-like is the anther and thread-like is filament. Both anther and filament, they form the stamen, and group of stamen is known as androecium, which is the third hole, and the innermost hole is known as gynoecium. Gynoecium, which is again made up of stigma, style and ovary. This is stigma, style, and third one is ovary. All these together form the gynoecium, pistil and gynoecium. So outer hole sepal, group of sepal is calyx, inner is petal, second hole colorful part, group of petal is corolla, third hole is the stamen, group of stamen is androecium, and the innermost hole, that is the female reproductive part, is the pistil, group of pistil is gynoecium. Then we will study the definitions. Calyx, which is made up of sepal, outermost hole of the flower, generally it is green in color, but in some plants they are of violet, red, etc. In bud condition they protect the flower, and calyx is termed as calyx may be prominent or absent. The second hole is the corolla. Again corolla, yes, it may be 4-5 petal. Corolla may be different in number, and single one is known as petal. It is generally colored, thin, soft part, and insects are attracted due to its colorful part. Even human beings are also attracted. And next important hole, that is the androecium, and male gamete. Male gamete is formed inside this. Male reproductive part, it is again made up of the androecium is made up of stamen, and each stamen is made up of anther and filament, which we have studied in the diagram.
The tip is the anther and the thread-like structure is known as filament. In anther, yes, in this one portion, anther, by meiosis, male gamete is formed. The anther is of two lobes, that is like in this way, equally bilobed structure. In each lobe, two sacs are present, and each sac is known as pollen sac. This one. It means 4 pollen sacs are present, and inside each pollen sac, pollen grains are formed. Anther is 4 lobe. Yes, again 4 lobe. Filament is thread-like structure, and filament is attached to the thalamus portion. In the transverse section of the anther is the microsporangia, which further form the pollen sac. इनिशियल स्टेज पे हम कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया, जो नेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट होकर जैसे जैसे मेच्योर होते हैं वो पोलन सेक के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं. कैसे होंगे वो हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे. चलिए मैं यही बता देती हूँ कि ये हो गया आपका बाइलोब. अब इसके अंदर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं, वो एक मास के अंदर इकट्ठी हो जाती हैं और धीरे धीरे ये 2 में डिवाइड कर जाती हैं. और बाय माइटोसिस, not by meiosis, by mitosis they divided into 2. One is the primary parietal cell and second one is the sporogenous mother cell. Primary parietal cell, they form the wall layers, and SMC, sporogenous mother cell, divide and form the pollen grain. In the initial stage they are the packed structure. In initial stage, like that, the 2 cell, the outer primary parietal cell, they form the layers, and these are the compact structure. They divide by SMC, sporogenous mother cell. They divide by meiosis, meiosis 1, and by meiosis 2, means 4 pollen grains are formed, which are arranged generally 3 in front and 1 at the back side. During their development, some are degenerated. जब डीजनरेशन होगा तो इन सेक लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर, इसी सेल के अंदर जब ये पोलन ग्रेन्स फॉर्म हुए हैं, कुछ पोलन ग्रेन्स का डीजनरेशन होगा जिसकी वजह से यहाँ पर गैप बनेगा जिसे हम कहते हैं सेक, और वो ही कहलाता है पोलन सेक. ठीक है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम के द्वारा पोलन सेक बनता है. आई थिंक आपको समझ में आ चुका है, और फिर भी नहीं है तो हम आगे इनको पढ़ते हैं. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेल गैमेट का फॉर्मेशन कहलाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कहलाता है मेगास्पोरोजेनेसिस, क्योंकि फीमेल गैमेट बड़ा होता है, बड़े के लिए मेगास्पोरोजेनेसिस. जेनेसिस मीन्स बनना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी मेल गैमेट बनना, मेगास्पोरोजेनेसिस मीन्स फीमेल गैमेट का बनना. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. और किससे बनेगा? एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल. कौन सा डिवीजन? मियोटिक डिवीजन द्वारा होगा. अब ये होता कहाँ है? फिलामेंट तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो गया. पोलन ग्रेन कहाँ बनेंगे? एंथर के अंदर ही. एंथर के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ईच एंथर इज बाइलोब्ड. यस, क्लियर. और हर एक लोब के अंदर 2 पोलन चैम्बर हैं जिनके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम है,
और हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर। हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर। तो हम माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर ही देख लेते हैं। यस, ये है आपका एंथर का टीएस ट्रांसफर सेक्शन, जिसके अंदर ये फर्स्ट वन में ये देखिए आपको 4 सेक लाइक स्ट्रक्चर पोलन सेक दिखाई दे रहे हैं। अब इनमें सबसे आउटर लेयर क्या हो गई, एपिडर्मिस, which is the outermost layer. Inner to the epidermis is, first one is epidermis. एपिडर्मिस के नीचे आपकी आ जाती है एंडोथीशियम, ये रही आपकी सेकेंड होल। एपिडर्मिस भी सिंगल लेयर की होती है, एंडोथीशियम भी सिंगल लेयर की। उसके जस्ट नीचे 2 to 3 लेयर की मिडल लेयर होती है, और सबसे इनर मोस्ट लेयर जो कहलाती है टेपिटम, जो मल्टी न्यूक्लिएटेड न्यूट्रिटिव लेयर होती है, स्पोरोपोलिनिन का सेक्रेशन करती है, जिसके कारण पोलन ग्रेन के हमें जो फॉसिल्स मिलते हैं। तो ये जो चारों हैं ये वॉल बनाती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेपिटम। They four form the layer, and inside this tapetum pollen grains are formed. ये देखिए आपको बहुत ही प्यारे प्यारे दिखाई दे रहे हैं। इन पोलन सेक्स के अंदर ये देखिए, जब इनके अंदर डिवीजन हुआ, जब पोलन ग्रेन की मात्रा बढ़ गई, तो इनका जो प्रेशर लगा, वॉल के ऊपर प्रेशर लगेगा, और इस सैक लाइक स्ट्रक्चर में कुछ खाली जगह भी बच रही है, क्योंकि कुछ पोलन ग्रेन डीजनरेट हुए, और जो डीजनरेट हुआ उनका न्यूट्रिशन जो है इन पोलन ग्रेन ने ले लिया, और जब ये वॉल ब्रस्ट होती है तब ये पोलन ग्रेन बाहर आउटर इन्वायरमेंट के अंदर आ जाते हैं। तो ये हमने एंथर के अंदर ही हमने देखी है वॉल, और कैसे बनती है देखिए। सबसे पहले आपकी एपिडर्मिस होती है, आउटर लेयर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर ही मास ऑफ सेल इकट्ठा हो जाता है, जिसे हम कहते हैं आर्कीस्पोरियम। इन आर्कीस्पोरियम के अंदर माइटोसिस होता है, नॉट मियोसिस। ये देखिए 2 सेल में डिवीजन हो रहा है, जिसके कारण 2 तरह की सेल बनती है। जो आर्कीस्पोरियम के अंदर डिवीजन होता है, जिससे 2 सेल बनती है। आउटर वन प्राइमर, आउटर प्राइमर पैराइटल, PPC प्राइमरी पैराइटल सेल जो वॉल लेयर बनाएंगी, और इनर स्पोरोजिनस मदर सेल, प्राइमरी स्पोरोजिनस मदर सेल बनती है। इसी तरह देखिए, जैसे एक में बनाए, एक तो यहाँ पे 1 2 3 4। तो ये 4 सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले आर्कीस्पोरियम बनेगा। आर्कीस्पोरियम में माइटोसिस होगा, जिसके कारण 2n से 2n ही बनेगा, इक्वल नंबर। माइटोसिस के कारण क्या होता है, 2n से 2n बनेगा, और जिसमें आपकी प्राइमरी पैराइटल सेल है वो लेयर बनाएगी कौन सी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टेपिटम। और स्पोरोजिनस मदर सेल, जिससे आपके पोलन ग्रेन्स बनेंगे। अब वॉल के ये नोट्स मैंने दे रखे हैं, आप इनको जूम करके रिटर्न इनके नोट्स ले सकते हो। टेपिटम, इसी का ज़्यादा क्वेश्चन आता है, टेपिटम का ही बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन स्टार बना लीजिएगा, यहीं से ज़्यादा आते हैं। टेपिटम मल्टी न्यूक्लिएटेड है, इनर मोस्ट लेयर होती है वॉल की, न्यूट्रिटिव है, स्पोरोपोलिनिन का सेक्रेशन होता है वो टेपिटम के द्वारा। मिडल लेयर 3 to 4 लेयर की होती है, जस्ट बिलो द एंडोथीशियम। एंडोथीशियम एपिडर्मिस के जस्ट नीचे है, और एपिडर्मिस तो आपके सबसे आउटर साइड के अंदर होती है, प्रोटेक्टिव सिंगल लेयर की होती है, डिस्चार्ज पोलन ग्रेन के डिस्चार्ज में मदद करती है। पोलन ग्रेन, अब
प्राइमरी स्पोरोजिनस मदर सेल, जो आर्कीस्पोरियल सेल ने डिवीज़न किया था, बाहर तो वॉल लेयर बन गई थी, और ये स्पोरोजिनस मदर सेल जिनके अंदर मियोसिस होगा और क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन बनेंगे। और मियोसिस के कारण 4 पोलन ग्रेन, और ये जो पोलन ग्रेन जनरली है, ये टेट्राड की कंडीशन में जो जनरल पोलन ग्रेन है 3 फ्रंट में दिखते हैं, एक बैक साइड में होता है। 4 द यंग एंथर सून बिकम 4 लोब्ड होमोजीनियस पैरेन्काइमेटस सेल सराउंडिंग द एपिडर्मिस, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इनिशियली आर्कीस्पोरियल प्रेजेंट हाइपोडर्मल सेल divide into 2 primary sporogenous mother cell which form the primary sporogenous mother cell form the pollen grain, and the outer parietal cell which form the layers. Sporogenous mother cell by mother cell divide and form the pollen grains are formed. Microsporogenesis, अब ये आपने देखा कि ये जो 4 लोब का स्ट्रक्चर है जिसमें ये वॉल लेयर्स बन चुकी हैं और अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम, इनिशियल में हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम। और जब इनके अंदर खूब सारे पोलन ग्रेन बनेंगे, कुछ डीजनरेट हो जाएंगे तो खाली जगह भी बच जाएगी, तब ये क्या कहलाएगा, माइक्रोस्पोरेंजियम कन्वर्ट हो जाएगा पोलन सेक के अंदर। और पोलन सेक के अंदर क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोरेंजियम इनिशियल स्टेज के अंदर मेल गैमेटोफाइट यहाँ पर बनते हैं, वॉल लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन। अच्छा, जब हम एक पोलन ग्रेन की, ये जो पोलन ग्रेन मियोसिस के द्वारा जो डिवाइड किए हैं 4 लोब में, 3 फ्रंट में, किसी में ये लीनियर शेप में भी रहते हैं, ये चारों अटैच या टी शेप में भी रहेंगे, ये इस तरह के ऐसे। तो जनरल है वो इस टाइप का टेट्राड कंडीशन में रहते हैं, 3 फ्रंट में, एक बैक एंड साइड में। ये चारों जॉइंट फॉर्म में सेलुलोज के द्वारा ये जॉइंट रहते हैं, और हम इस एक को कहते हैं ये पोलन ग्रेन। डिस्चार्ज के समय, पोलिनेशन के समय ये जो है सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम इनकी वॉल को डाइजेस्ट कर जाते हैं, और ये पोलन ग्रेन या अलग अलग जो है डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो एक हुआ हमारा पोलन ग्रेन। वो पोलन ग्रेन किसका बना है, आउटर एक्साइन और इनर एंटाइन का। आउटर लेयर स्पोरोपोलिनिन की थी, याद कीजिए ये स्पोरोपोलिनिन कौन सेक्रीट करता है, टेप्टम सेक्रीट करता है। इनर लेयर पेक्टिन और सेलुलोज की बनी हुई है। ये देखिए आपका एक पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, इसमें बहुत प्यारा डायग्राम है। ये देखो, थिकनेस जो है यूनिफॉर्म थिकनेस नहीं है। आउटर लेयर क्या है, एक्साइन है। इनर लेयर क्या है, इंटाइन है, जो पेक्टिन और सेलुलोज की बनी हुई है। थिकनेस के अंदर आप देखिए ये जो पोर दिखाई दे रहा है, जर्म पोर, यहाँ से जो है पोलन ट्यूब निकलती है, जो स्टिग्मा के ऊपर निकलते हुए उसकी स्टाइल से पेनिट्रेट करते हुए फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती है। जनरली पॉलिनेशन 2 सेल स्टेज में होता है। मैं 2 सेल स्टेज, ये देखिए, जर्मिनेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल। जर्मिनेटिव एंड वेजिटेटिव 2 सेल स्टेज में पॉलिनेशन होता है। प्री पॉलिनेशन, पॉलिनेशन मीन्स क्या होता है, पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पर गिरना। जो हमने 3 ओल पढ़े थे, आउटर ओल केलिक्स, उसके इनर कोरोला, फिर थर्ड ओल एंड्रोशियम जिसमें पोलन ग्रेन बने हैं आपके, और जो 4th ओल इनर मोस्ट है जो गाइनोशियम, और गाइनोशियम के हमने पार्ट पढ़े स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये वाला पोर्शन स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब हमारे एंथर के अंदर ये जो पोलन ग्रेन बन चुके हैं, ये पोलन ग्रेन का स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफ़र होना, ये कहलाता है पोलिनेशन। अब यहाँ पर पोलन ग्रेन जो एक्साइन वगैरह, इंटाइन और एक्साइन बने हुए तैयार हैं,
पोलिनेशन से पहले इनके अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे। द माइक्रोस्पोर स्टार जर्मिनेटिंग इन सिटू, इनमें पोलन जो है इन सिटू जर्मिनेशन शुरू हो जाता है। 2 सेल स्टेज में होता है पोलिनेशन। जर्मिनेटिव सेल लाइंग टू द स्पोर वॉल, a cellulose layer around the germinative cell dissolve, क्योंकि ये जो 4 सेल स्टेज के अंदर हैं, इनकी सेलुलोज की ये जो लेयर है वो टूटेगी, सेलुलोज लेयर डिसॉल्व हो जाती है, जिसके कारण ये पोलन ग्रेन शेड ऑफ हो जाते हैं और इनकी वॉल है वो ब्रस्ट हो जाती है। पोलन ग्रेन आउटर इन्वायरमेंट में आ जाते हैं और स्टिग्मा के द्वारा जो पोलिनेशन है ये या तो विंड के द्वारा, एयर के द्वारा, इंसेक्ट्स के द्वारा, ह्यूमंस के द्वारा, बर्ड्स के द्वारा पोलिनेट होते हुए एंथर से स्टिग्मा पर चले जाते हैं। स्टिग्मा पर जाकर ये वाटर का अब्जॉर्प्शन करते हैं और ये पोलन ग्रेन यहाँ पहुँचे हैं बाहर एक्साइन इन टाइम, स्वेल विद द फ्यू मिनट्स एंड ट्यूब इज सेक्रेटेड। याद कीजिए मैंने बात की थी जर्मिनेटिव ट्यूब, वो ट्यूब निकलते हुए यहाँ आपका मेल गैमेट है, ये जर्मिनेटिव ट्यूब स्टाइल से पेनिट्रेट होती हुई फीमेल गैमेट तक पहुँचती है। द वॉल ऑफ द ट्यूब सेक्रेट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, कौन सा एंजाइम सेक्रेट किया जाता है? हाइड्रोलाइटिक एक्सोजीनियस, विच पास द एंट्री फ्रॉम द स्टिग्मा टू द स्टाइल। द 2 सेल हमने देखे थे पोलन ग्रेन के अंदर, जर्मिनेटिव एंड वेजिटेटिव सेल विच आर कैरी टू द पोलन ट्यूब। ये दोनों ही आपकी इसके अंदर, ये देखो ये इस तरह से दोनों ही आपके जर्मिनेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल इस ट्यूब के द्वारा पेनिट्रेट करते हैं। जर्मिनेटिव सेल अगेन डिवाइड टू फॉर्म 2 मेल गैमेट, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन डिवाइड करता है? जर्मिनेटिव सेल डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बनाती है, इसीलिए यहाँ पे होता है आपका डबल फर्टिलाइजेशन। ये देखिए यहाँ आपकी अगेन दिखा रखा है एंथर, फिलामेंट, पोलन की वॉल, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, टेपिटम, पोलन ग्रेन बने हैं। ये आपके पोलन ग्रेन जो स्टिग्मा से पेनिट्रेट करती हुई। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे इनका मेल और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन होता है और मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस कैसा होगा, वो मैं आपको नेक्स्ट कल के वीडियो में आपको देती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू। समझ में आ गया लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जल्दी आपसे मिलती हूँ। ओके, बाय बाय। लाइक कर दीजिए, शेयर